Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and the predictions for the month of August 2023. So for Virgo Ascendant people, the Ascendant Lord Mercury is passing through the 12th house and it is going to remain here throughout August and September. So this is a tricky placement as far as the Ascendant Lord is concerned because this makes an individual feel lonely and isolated, and that is what you will feel throughout the month of August and September. The best way to counter this negative energy is to meditate and spend your time in NGO or provide your services in hospitals. This month is all about tackling the tricky placement of the Ascendant Lord. If you connect with foreigners or if you work with foreigners at your workplace, then you will relatively face lesser problems compared to other people who work in the country where they are born. Mars is the lord of your 8th house and 3rd house for you, and this Mars is going to be placed in your first house from 19th of August. And while this is a good placement for those who are in the domain of research, technical consulting, astrology, and healing business, along with those who are in the business of insurance and actuaries, in general, you will feel bodily discomfort. You have to overcome this situation through a transformation in your behavior. You have to acquire a growth mindset in the month of August and September in order to overcome this kind of a challenging placement. Venus is the lord of your second house and it is in a retro position and will be placed in the 11th house. You can try to participate in the group activities that take place in the social gatherings or in community settings, and this will also help you to reduce your loneliness to a certain extent by connecting with others and trying to be a part of your community. Saturn is the lord of speculation, and for Virgo ascendant it is going to aspect the ascendant lord throughout the month of August. Saturn will be aspecting Mercury through the seventh aspect. What it means is that whether you are a speculator, a student, or a person who is an artist, you will have to work extremely hard in order to get the desired gains in the month of August. For people who are in the speculation business, the time frame from 11th to 16th of August is a relatively better time to reap rewards from the market. And if you're a student, then again time frame from 11th of August to 21st of August is good as far as succeeding in competitive exams is concerned. See, this month is all about utilizing the negative energies of the 12th house by engaging yourself in meditation and in service of others. If you can introspect and try to address the weaker areas and find areas of improvement, then you can utilize this tricky time in a positive manner. Otherwise, this will turn out to be a difficult month for you. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching this video. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, कन्या लग्न के लोगों के लिए जो लग्नेश बुध हैं वो 12वें भाव से भ्रमण करते रहेंगे पूरे अगस्त और सितंबर के महीने में। तो लग्नेश का 12वें भाव से जाना, अगर आपकी लग्न कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा फॉरेन चले जाना चाहिए। और ये कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहलाता है क्योंकि व्यक्ति का पूरा जीवन ही दूसरे लोगों की सेवा में गुजरता है और उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। तो बहुत से लोग जो कि अपना पूरा जीवन समाज सेवा में बिता देते हैं, उनका लग्नेश 12वें स्थान में होता है। इसके अलावा जितने भी लोग साधु संत वगैरह होते हैं, उनमें से भी बहुत से लोगों का इस तरह का प्लेसमेंट होता है। तो व्यक्ति का अपना पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहता है, खाली दूसरों की सेवा में ही समय गुजरता है। तो यहाँ पे लग्नेश का 12वें भाव में गोचर में जाना, यानी कि अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो अपने को कम्युनिटी सर्विस में समय दीजिए, हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ के अपनी सेवाएं दीजिए, चैरिटी कीजिए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में जाके अपना सेवाएं दीजिए। या फिर अगर आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेट कीजिए, क्योंकि इसी चीज़ों से 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा का डिसिपेशन होता है। नहीं तो फिर ये आपको अस्पताल पहुंचाने का काम करती हैं अगर आप इनको एड्रेस ना करें तो। मंगल आपके लिए अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं और ये लग्न स्थान में बैठे रहेंगे। तो लग्न स्थान में बैठा मंगल व्यक्ति को ऊर्जावान तो बनाता है, लेकिन चूंकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं तो ये आपको कोई ना कोई शारीरिक तौर पर पीड़ा अवश्य देगा।
अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं या आप कहीं पर भी कोई भी टेक्निकल कंसल्टिंग का काम करते हैं, आप स्वयं ज्योतिषी हैं, हीलिंग के बिजनेस में हैं, इंश्योरेंस या एक्चुअरीज वगैरह में काम करते हैं, या सीबीआई सीआईडी जितने भी गुप्त चीज़ें हैं उनमें अगर आप अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये महीना प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि अष्टमेश का लग्न स्थान से भ्रमण यानी कि वो प्रोफेशन में भी आपको ऊपर खींचने की क्षमता रखता है। लेकिन इस पोजीशन को सबसे अच्छा एड्रेस करने का तरीका है कि आप खुद अंदर झांक के देखिए कि आप में क्या कमी है, और उन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस तरह के प्लेसमेंट को एड्रेस करने का। और जितने भी लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, मेरे को लगता है कि उनको कुछ ना कुछ अपने बारे में नया ज़रूर पता लगेगा, और ख़ास करके कोई वो नई अप्रोच लेके आ सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपके लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, और ये 11वें भाव में बैठे रहेंगे, तो दोनों ही धन वाले स्थान हैं। तो द्वितीय का 11वें भाव में बैठना वैसे तो बहुत अच्छा कहलाता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर वक्री अवस्था में है। तो आपको इस समय में जितने भी ज़्यादा आप कम्युनिटी से जुड़ सकें, सोशल गैदरिंग्स में जा सकें, वहाँ पर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। फॉरेन में से कम्युनिटी सर्विस की जाती है, वो उस तरह का काम कीजिए, कुछ समाज सेवा कीजिए, तो उससे आपका अकेलापन भी कम होगा। और ये शुक्र का आप ये प्लेसमेंट को भी यूटिलाइज कर पाएंगे। हो सकता है आपके नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बन जाएं और कुछ नेटवर्किंग बन जाए, जिससे आगे जाके आपको फ़ायदा हो, या आपकी धन की स्थिति में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। शनि आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो एजुकेशन के भी मालिक हैं और शेयर बाजार के भी मालिक बनते हैं आपके लिए। तो जितने भी लोग इन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर वो कलाकार हैं, उन सब के लिए अगस्त का महीना बहुत संघर्ष भरा निकलेगा, क्योंकि शनि आपके सीधे सीधे लग्नेश को देखेंगे सप्तम दृष्टि से पूरा महीना भर। इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी थोड़ा बहुत गेन कमाने की दृष्टि से, क्योंकि शनि कठोर मेहनत के बिना कुछ देता नहीं है, और इस केस में वो बुध को भी देखता रहेगा, तो आपके लिए वो मेहनत करने के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं छोड़ता। अगर फिर भी ये बोला जाए कि कौन से तारीखें अगस्त के महीने में अच्छी होंगी स्टॉक मार्केट के लिए, तो 11 से 16 अगस्त का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा है। लेकिन आग अगर स्टूडेंट है तो भी 11 से 21 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने की दृष्टि से। तो ये महीने दोनों ही अगस्त और सितंबर कन्या लग्न वालों के लिए थोड़े मुश्किल साबित होंगे। और ये जो प्लेसमेंट होता है हमेशा लग्नेश का 12वें भाव में जाना, कोई भी लग्न हो उसके लिए बहुत ट्रिकी प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे कैसे आप ये 12वें भाव की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका कैसा इस्तेमाल आप करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप अपने अंदर झांक के देखते हैं कि आप में क्या कमी है और कैसे आप उसको सुधार सकते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आप ये ऊर्जा को एड्रेस नहीं करते हैं, तो फिर ये समय आपके लिए अच्छा नहीं निकलेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।